A very good evening to all of you. The topic of today's session is relational principle. We all know the value of relationships in our life, and we all are somewhere deep diving into it. And relationships are very crucial and for a meaningful and happy life. Healthy, fulfilling relationships are very important for our emotional and physical well-being. So, ma'am would be discussing and throwing some light on this topic, that how does relationship impact our happiness and how are they interrelated with each other? Over to you, ma'am. Hi. Thank you so much, ma'am. All right, so I'll start. I'll just share my screen. Yeah. So this is our discourse, relational principle. So as Shreya ma'am also said, that relations are very important for us, and it is the minimal thing or the necessary thing that we actually require for a meaningful and a fulfilling life. And we always feel that we should have that one relation in our life which gives us happiness and which is very, very important for us. So before starting further, I would just want to know a very quick thing, which is the one relationship in your life which is very, very important for you. So just one relation, two relation, whatever. So two people who are very important in your life. My brothers, my husband, my children. Yeah, so okay. So it became so difficult for us to actually say just one relation, right? So you No, said not your one. brother, yeah. So you said your brothers, your husband, your children. It becomes so difficult for us to just identify that one relation which is important for us. Why? Because there are Yeah. multiple relations which are important for a human being. Why? Because we are social beings, and it is very important Yes. for us to be social and to have certain relationships. So now I'm not denying the fact that some people want to just sit in a corner and have their personal space and spend time uh, with themselves. That is completely fine. That is not something I'm talking about. But I'm just saying that uh, no matter what, no matter how introvert you are, you need relations in your life, and they are something that affect your life to a great extent. So it's very, very important for us to have healthy relations which make a positive impact on you, and stay away from negative uh, negative feelings or negative uh, if you're getting if you're in a toxic relationship, if you're getting only the negative side in a relationship, then that is a relationship which you need to think about. It's not necessary to hold on to all the relations that you have in your life. It's very important for us to identify which is a good relation and which is a toxic relation. So if you have a toxic relation, it's better to just uh, put it out and keep it out of your life. Because ओके सो अगर अगर आपकी किसी एक फिंगर में कोई से फॉर सपोज अगर कोई ऐसा पॉइजन आ गया या ऐसी कोई डिजीज आ गई कि डॉक्टर आपको बोलता है कि अगर आपने ये एक फिंगर नहीं हटाई तो आपकी पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा, तो आप क्या करोगे? यू विल मेक अ सेंसिबल डिसीजन ऑफ सेइंग, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट यू विल मेक अ सेंसिबल डिसीजन ऑफ सेइंग कि ओके, इफ दैट इज टू बी डन, let's just remove this finger and save the whole body. And इसी केस में हम एक चीज और बहुत सुनते थे कि if there's a rotten apple, अगर एक सेब खराब है in a basket of good apples, अगर हमने उस खराब एप्पल को बाहर नहीं निकाला तो बाकी के एप्पल्स भी खराब हो जाएंगे. The same thing happens with relationship. So if you are not focusing and you're not emitting that particular relationship or that particular feeling from your life, then you are going to impact all other relationships. Okay, so relationship is an exchange of energy between two souls. The high low vibrations, each one of them is playing their own roles. Our thought, feelings, words, behavior also reach the other person. So here what I want to say is that
जब भी हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप होती है या हम किसी से बात करते हैं, तो उसमें अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो दोनों लोगों की वाइब्रेशंस, दोनों लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। अगर आप से फॉर सपोज अगर आप किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट आपने दिया और सामने वाला खुश भी हुआ, लेकिन आपने उसको खुशी से वो गिफ्ट नहीं दिया, आपको लगा ओ मेरा इतना पैसे लग गए, दैट वाज नॉट समथिंग जो मुझे नहीं देनी चाहिए थी, पर ठीक है दुनिया दिखावे के लिए हमने दे दी, आपने वो चीज उसको खुशी से नहीं दी। वो चीज जो आप नेगेटिव फीलिंग अपने मन में रखे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई इससे व्हाट गुड यू आर डूइंग, जिसको आपने गिफ्ट किया वो तो इस चीज को यूज करके यूटिलाइज कर लेगा, बट यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू योर सेल्फ। वाई? बिकॉज आप ये सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, आप अपने आप को एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, और अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सो उसमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो वी फोकस ऑन कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, हम ये फोकस करते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, या फिर हम बोलते हैं हमने इतना सब कुछ किया उस इंसान के लिए, कि मैंने इतना टाइम एंड एफर्ट दिया इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल द अदर पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद मी। सो या तो आपकी रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग और वो कोऑपरेशन है नहीं, या वो आपका बॉन्ड नहीं है, या फिर हम उसको गलत तरीके से डील कर रहे हैं उससे। सो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो तीन तरीके से होता है, एक आपका थॉट, एक आपके एक्शन, एक आपके वर्ड्स। अगर ये तीन चीजें मैच नहीं करेंगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है। सो अगर आपका थॉट क्लियर नहीं है, आप उसको गिफ्ट देना चाहते हो, ओके वेल एंड गुड, आपने उसको गिफ्ट दिया, एक्शन, वर्ड्स, आपने उसको अच्छे से बोला कि ओके हैप्पी दिवाली, आपने उसको गिफ्ट किया, या हैप्पी बर्थडे आपने गिफ्ट किया, अगर ये तीनों चीजें ठीक है फिर तो ठीक है। बट अगर आपका थॉट क्लियर नहीं है और आप जोर जबरदस्ती में उसको गिफ्ट दे रहे हो, that means one thing is lacking which will affect the relationship in some or the other way. So it is very important to have these three things correct. Okay, otherwise you will just create negative vibrations and it will affect you in turn. So energy which I give to people, I am the receiver of that energy, and this is one thing that we need to understand. अगर हम किसी को, हमें ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे को पॉइजन दे रहे हैं, नहीं, तो हम अपने आप को पॉइजन दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज पे थिंक करती रहूंगी और मैं कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातें सोचती रहूंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि मैं ही उस एनर्जी की रिसीवर होंगी एंड मुझे हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाएंगे, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आई कैन हैव any number of diseases because of this one thing. So when our vibration has started affecting even our body, just think how much effect would it have done our mind. The energy that we are giving to people, regardless the other person accepts it or not, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, आप किसी के बारे में ग्रज रख के सोच बैठे हुए हो, लेकिन आप वो एनर्जी उसको नहीं दे रहे हो, आप वो एनर्जी अपने आप को दे रहे हो, और अपने आप को देने की वजह से आप स्ट्रेस कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपको डिजीज हो रही है, और एट द एंड वो आपके माइंड को अफेक्ट कर रही है। व्हाई? बिकॉज देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स व्हिच यू कैन थिंक अबाउट, लेकिन आपने अपने माइंड को उस चीज से ऑक्यूपाइड रखा हुआ है और आप कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं सोच रहे हो, और आप फालतू की बातें सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, हम ग्रज लेके बैठे हुए हैं, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, एंड एट द एंड वी आर नॉट डूइंग एनी गुड टू अस. So energies I give is taken by my mind first. Then relationship is about give and take. No, it's not that if you're doing something for someone, it's not necessary that the other person will also do something for you. अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें ये बोलेंगे कि बेटा हमने आपके लिए ये किया, या मैंने आपको बचपन से लेके आज तक पाला और मैंने आपके लिए ये सारी चीजें करी, आप कभी भी उनको रीपे नहीं कर सकते ऑफ व्हाट दे हैव डन फॉर यू.
तो इट्स नेवर एवर अबाउट गिव एंड टेक. अगर हम गिव एंड टेक वाला सिस्टम लेके चलेंगे तो रिलेशनशिप्स कभी भी हेल्दी नहीं होंगी, फुलफिलिंग नहीं होंगी, उस रिलेशनशिप में कोई हैप्पीनेस नहीं होगी. सो इट्स नेवर अबाउट टेक, इट्स जस्ट अबाउट गिव. आप बस दो, उम्मीद मत रखो कि वो सामने वाला बंदा करे. There should only be love and not expectations. So if you have more expectations, wishes, needs, मुझे ये चाहिए ही है, so then it will land up nowhere. So calculate in doing, not in being. Start focusing on the giving part, not on the taking part. The other person is doing his best as per his capacity, his understanding. Don't try and equalize everything. It's not that कि अगर किसी ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया है तो मुझे भी उसको आईफोन गिफ्ट करना है. अगर किसी ने मुझे एक चीज दी है तो मुझे भी आगे उसको कुछ देना है. या फिर अगर मैं किसी को कुछ गिफ्ट कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अब वो भी मुझे गिफ्ट करे. नॉट नेसेसरी. आपने कुछ दिया जो आपके उसमें था, आपका मन था, आपने दे दिया, कहानी वहीं खत्म हो जाती है. अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लाओगे, ओवर थिंकिंग लाओगे, तो हम कभी भी अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी नहीं रख पाएंगे. So love and expectations. Love is an indispensable element in every harmonious relationship. But the secret in such relationships is to minimize expectations. So I have a very beautiful example which I observed in my family. So my bua, so she says that हमने अपने बच्चों के लिए जो कर दिया वो कर दिया. अब मैं कभी भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि मेरा बेटा जो है वो कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो मुझे उतना ही प्यार करेगा या वो मुझे उतना ही मेरा ध्यान रखेगा जितना उसको रखना चाहिए या जितना मैंने उसका रखा, या मेरे बुढ़ापे में वो मेरा उतना ध्यान रखेगा. उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से भी. शी सेड मी एंड माय हस्बैंड आर हैप्पी एंड वी लिव आवर लाइफ. एंड कई कई बारों पे वो ऐसा भी नहीं करती हैं कि अगर अच्छा अगर मेरे बच्चे की ये है तो शी कैंसिल आउट ऑन द आउटिंग दैट शी वाज डूइंग विद हर हस्बैंड. शी विल से नो, दिस इज माय लाइफ, आई विल डू इट एंड दिस इज देयर लाइफ. मैं उनको भी नहीं रोकूंगी और मैं खुद भी नहीं वो करूंगी. सो आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ, आई विल टेक केयर ऑफ देम आल्सो एंड आई विल हैव द लीस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम इन फ्यूचर. बट किया उन्होंने पूरा उनके लिए. सो कभी भी आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो. मिनिमम टू मिनिमम आप एक्सपेक्टेशंस रखो किसी भी रिलेशनशिप से. जितनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उतना आप सुखी रहोगे. सो बिकॉज वेयर एक्सपेक्टेशन क्रीप्स इन, डिसअपॉइंटमेंट विल नेचुरली फॉलो. अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हुई है, आप इतने डिसअपॉइंट हो जाओगे, यू विल कीप ओवर थिंकिंग और फिर आप बस डिसअपॉइंटमेंट में ही रहोगे. कभी भी उस रिलेशनशिप को वो प्यार नहीं दे पाओगे. Okay, so there's a titanium rule: do what they will like you to do to them. The actual rule is do unto others according to their duties. So जैसा वो आपके साथ, जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनके साथ वैसा करो. अगर वो आपसे रिस्पेक्ट चाह रहे हैं आप उनको रिस्पेक्ट दो. अगर वो आपसे लव चाह रहे हैं आप उनको लव दो. लेकिन जहां तक आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे. बट द होल पॉइंट हियर इज दैट इफ यू वांट others to treat you respectfully, then you will also have to respect them equally. आप दूसरे की तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे. This doesn't work like that. कोई भी, so it's really important. So the titanium rule respects both my needs and the needs of the others. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो बोल रहे हैं क्या सामने वाले को उससे हर्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या सामने वाला जो है वो उस बात का बुरा तो नहीं मान जाएगा, या हम गुस्से में ऐसा कुछ ना बोल जाएं जो हम मीन नहीं करते. रिलेशनशिप्स में ऐसा बहुत बारी होता है कि तो मेरी फैमिली में बहुत बारी ऐसे बोलते हैं कि जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना उसी पे तुम्हारा सबसे ज्यादा गुस्सा निकलता है. बट दिस इज रॉन्ग. आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उसी को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं. देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप कि आप उसको इतना हर्ट कर रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है. So I treat myself with love and respect and treat others with graciousness and respect.
Okay, so romance of life. If a relationship causes stress, anger, anxiety, or depression, find ways to eliminate your involvement. अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है उस रिलेशनशिप के लिए, एंड यू डिड योर बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, एंड यू ट्राइड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, और आपकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आती है. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट अगर हमें कभी ऐसा लगे कि ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऐसा है जो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो जा रहा है, जितना मर्जी मैं ट्राई करूं, इट इज नॉट वर्किंग आउट, then you need to figure out a way, you need to eliminate your involvement from that relationship. Why? Because you cannot just get into it. आप एक रिलेशनशिप हम इसलिए मेंटेन नहीं करते हैं कि वो हमें सिर्फ स्ट्रेस दे. एक रिलेशनशिप जो है ना, वो एक कंप्लीट सर्कल होना चाहिए. आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है, आपको सुख भी है, दुख भी है, साथ भी है, सब चीजें होनी चाहिए. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल. इट शुड नॉट जस्ट बी अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ. इफ यू फील दैट इट इज लाइक दैट, देन इट्स हाई टाइम दैट वी शुड जस्ट एलिमिनेट our involvement from that particular relation. So with that, I would just also want to say that if we feel that there is something that we should change in ourselves, if I will feel कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो रिलेशनशिप सही वर्क नहीं कर रहा है, then it's high time कि मुझे वो गलतियां, वो हैबिट्स मुझे ठीक कर लेनी चाहिए हैं, अगर मैं उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहती हूँ. क्योंकि मेरी उन हैबिट्स की वजह से 2 लोग जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, या 5 लोग, जितने भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, सबके सब इफेक्ट हो रहे हैं. सो इट इज okay to just change few of your habits, and for the to keep that relationship. So मेरी एक cousin sister है, she just got married. So one day she shared with me कि मेरी जो mother in law है, उन्होंने मुझे डांट दिया कि तुमने सब्जी में सब्जी ऐसे बनाई है, ऐसे नहीं बनाते हैं, इसमें नमक कम है, ये कम है, वो कम है. And she was very pissed off कि ऐसे क्यों बोल रही हैं, वैसे क्यों बोल रही हैं. एंड दी अदर, जब मैंने उनसे ये चीज क्वेश्चन करी कि दी अच्छा, अगर यही आपकी मदर होती और आपको बोल देती कि बेटा सब्जी में नमक कम है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तब आपके लिए वो बात ठीक होती, क्योंकि वो तो माँ है, वो तो बोल रही है सालों से, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप एक नए घर में बोल जा रहे हो, जिनका रहने का, खाना खाने का, खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, एंड आपको और उनको भी, आप दोनों को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा. एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनाने में टाइम लगेगा, एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की हैबिट्स को समझने में टाइम लगेगा. अगर आप वो टाइम नहीं दे रहे हो और पहले ही उनको जज करना शुरू कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक दैट शी इज अ मदर इन लॉ, एंड सेम उनकी सास अगर उनको जज करे दैट शी इज अ डॉटर इन लॉ, देन दैट इज रॉन्ग. क्योंकि आपने पहले ही वो कड़वाहट ला दी ना रिलेशनशिप में. अगर आप मौका ही नहीं दोगे इस रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगा. देन उसमें इट इज आवर फॉल्ट. सो वंस शी अंडरस्टूड दैट, she gave it time and now she is happy. So आज वो खुशी से आराम से चल रही है, उनकी मदर इन लॉ भी उनके लिए बहुत अच्छी हैं और सब कुछ अच्छा है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा बोल देते हैं कि शादी के बाद जो है वो सास जो है वो वैसे माँ की तरह ट्रीट नहीं करती है, या सास जो है वो बहू को बेटी नहीं मानती है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटी जो है वो भी सास को माँ माने. इट शुड बी ऑलवेज टू वेज. अ रिलेशनशिप डजंट वर्क्स वन वे, इट शुड ऑलवेज बी अ टू वे. बाकी अगर आपके हैबिट्स मैच ही नहीं कर रही है या रिलेशनशिप में कुछ और दिक्कत है, वो बात अलग है. बट एटलीस्ट गिव अ चांस टू द अदर पर्सन टू प्रूव, टू बॉन्ड इन दैट रिलेशनशिप. So okay, also at the same time, it is very, very important to learn to forgive. People are bound to make mistakes, sometimes accidentally, sometimes deliberately, or even in spurt of anger or hurt. So just give them that chance कि ठीक है, गलती हो गई, मुझसे भी होती है, उनसे भी होती है, उनसे गलती हो गई. Forgive करना बहुत जरूरी है. All right, sense of gratitude. This is very simple. आप ग्रैटिट्यूड रखो जो भी आपके पास आपकी लाइफ में है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखो. द मोर यू हैव दिस हैबिट, द लेस
hamper, the less problems we'll have in our relationships. सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी तभी हो जाती है जब हमें gratitude ही नहीं होता है. So it's very very important to have that gratitude. क्योंकि हम सब में एक पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो बिल्कुल ही पॉजिटिव है. हर किसी की एक नेगेटिव साइड होती है, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन. So it's really important for us to just see कि एक रिलेशनशिप में वो नेगेटिव साइड ना बढ़ती जाए, वो ईगो, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो फाइट्स, वो बढ़ती ना जाए और पॉजिटिव साइड कम ना होती रहे. We always have to increase the positive side and decrease the negative aspect of the relationship. Okay, so what all you need for healthy relationships? We need happiness, love, mutual respect. It's very very important. अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या जो भी आपका फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट दें, then it's very important कि आप भी उनको उतनी रिस्पेक्ट दो. Even if you have a house help in your home, if you will not respect that person, the house help will also not respect you. It's not that you're paying money to them for doing your work that gives you the liberty to mistreat them. No, not at all. It's very very important to have that mutual respect. Then so there are several other things. You have to have minimum expectations, correct state of mind, no selfish reason of being together. This is really really important. अगर आप कोई भी चीज एक सेल्फिश रीजन की वजह से कर रहे हो, मैं इससे दोस्ती इसलिए कर लूंगी क्योंकि ये एग्जाम रोल नंबर में मेरे आगे बैठता है, मुझे चीटिंग करा देगा जी, बस इसलिए दोस्ती करिए ना, तो वो दोस्ती कभी काबिल नहीं होगी. अगर उसने मना कर दिया मैं नहीं दिखाऊंगा, तो बस गए आप, फेल. तो कभी भी सेल्फिश रीजंस की वजह से एक रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए है. ओके, सो अगर आप किसी से शादी कर रहे हो और आपको लग रहा है ये बंदा तो बहुत ही अमीर है यार, लेट्स जस्ट गेट मैरिड, लाइफ इज सेट, मनी इज ऑल दैट यू नीड. नो, once you get married you'll realize what all you need to have a successful marriage. It's not just money. Okay, so it's very important for us to understand that relationship is about giving, not taking. It's not business deal नहीं चल रही है, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा, नहीं. It's not a business deal. Understanding each other, having the right energy. Your mind's battery needs to be recharged. A discharged battery is no help to anyone. अगर आप अपने अंदर इतनी नेगेटिव फीलिंग्स भर लेंगे कि आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को कुछ भी दे सकें, देन आपका माइंड जो है वो नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है. आप किसी को क्या पॉजिटिव दे पाओगे रिलेशनशिप में? किसी को तो छोड़ो, हम अपने आप को ही कुछ पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे. अगर हमारा ही स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो हम किसी को क्या देंगे अपनी लाइफ में ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी माइंड की बैटरी को चार्ज रखूं. जैसे हम फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं ना एवरी नाइट, वैसे ही हमें माइंड की बैटरी भी चार्ज करनी है. व्हाई? बिकॉज there'll be a next day which will give us new challenges, new problems in life, and if you don't have a positive outlook, it will be very very difficult for you to handle that problem. Learn to forgive, have a sense of gratitude. You're free to add more aspects, whatever you want to add. The only point is that we need to have healthy relationships. जितना relationships होना जरूरी है उतना हेल्दी रिलेशनशिप होना जरूरी है. सो हमेशा आप कभी भी याद रखें, तो ये याद रखें कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप रखनी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रखनी है. ओके, सो दिस वाज इट. नाउ आई जस्ट हैव अ एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. वी कैन जस्ट गिव 10 minutes to that activity. Shreya ma'am, do we have 10 minutes for the activity? Yes, ma'am, we have certain time. Yeah, okay, so we can have 10 minutes for the activity and then we can keep 10 minutes for the Q&A session. If you're not able to access the activity, or if you feel you want to take time and then write,
This will be an assignment which will be shared with you on the Telegram and the WhatsApp group. You can go ahead and take your time and then fill it. But I would just love if I get some responses right now. So I'll just share the link of that activity with all of you. So this is the activity. I guess it's visible to everyone. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, so I'll just share the link in the chat box so that everybody can just open it. Okay, so we have one response. What, according to you, is forgiveness? Not to think about that issue or person anymore with negative thoughts. Very good. Okay, we have one more. To let go of the unpleasant experience caused by behavior of self or other. Perfectly fine. So it's very, very important for us to, if not, if you cannot just forgive that person, at least forget that incident, whatever you can do. So if forgetting that incident helps you with your mental health, then go ahead, do that. If forgiving that person helps you, go ahead, do that. It's very, very important to keep a check at your mental health if you want to lead a happy life. Okay, we have so many responses now. We have 100% agreed, agree. You guys can write your names also. Is forgiveness a way for better psychological well-being? Yes, definitely. Yes, no doubt. Great. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Examine this statement. Yes, perfectly said. Okay, yes, it reduces your mental burden. Meenu, yes. Perfect. Okay, so right now everybody is just giving a short answer, uh, which is really good. But later on, you guys can just think on these questions, and we would love to see some explanation also, some reasoning also to these particular questions. And if it gets selected, then we'll definitely publish it in the newsletter also. Okay, so what according to you is forgiveness? It's really a method for me to be happy and not to be overburdened by past incidents. Very good. In some way, like forgiving yourself also. Exactly. So forgiveness is not just about forgiving the other person. Forgiveness is about forgiving yourself also. It's very, very important. So this happened with me only when I was just appearing for a entrance exam, and then I could not clear it. So I was not able to get over that fact, and I was not able to forgive myself. I was just, मैं constantly अपने आप को इस चीज के लिए कोस रही थी कि मे बी मैंने ही उतनी मेहनत नहीं करी है, मैंने नहीं करी है, या मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला, टाइम नहीं दिया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी. एंड आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली बिकरिंग अबाउट इट कि मेरी गलती है. बट उससे होगा क्या? The paper will not come back. I will not clear the entrance exam. It's really important to just accept the fact, forgive yourself that you did a mistake. Okay, just get over it, and the next time do more time and give more effort, and just get over it. You will definitely clear it, and I was able to do that. So definitely you will also be able to do that. So it's very, very important. Okay, so we have a lot of responses now. So you guys can continue filling it. Okay, so we'll just, all right. So Shreya ma'am, can we take a few questions? Yes, all the participants are requested to have their question in the chat box, or they can raise their hand and ask their question. Whatever is suitable for all of you. Yeah. If anybody wants to share any experience also, then also you can just go ahead, share your experience.
कोई ऐसी पर्टिकुलर बात रही हो जो आप लोग को याद आ गई हो जब आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा कुछ फेस हुआ हो अपने किसी रिलेशनशिप में, एंड हाउ यू ओवरकम्ड दैट? Any moment of self-realization if you have. Exactly, yeah. Shreya ma'am? Yes, Meenu. Do you want to say Namaste, ma'am. something? यस मैम। Yes, Yeah. Meenu, ma'am. मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जैसे हमारी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप होती हैं। देखो एज ए मदर, एज ए वाइफ मुझे हस्बैंड के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है, मुझे बच्चों के साथ भी करना है, और कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जैसे मेरे को अपने ससुराल से भी करना है और अपने मायके वालों से भी कोऑर्डिनेट करना है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जैसे और सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो उसकी वजह से हम जो एक लेडी होती है, मेरे को तो यही लगता है कि एक लेडी को बहुत बीच में आके ना बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो चाहे तो वाक़ई में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इधर-उधर से, तो भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भूल जाएँगे ना तो उसे सीखेंगे नहीं। तो जहाँ बात आती है भूलने की और माफ़ करने की, माफ़ कर दो लेकिन भूलो मत, क्योंकि जो गलतियाँ हुई हैं या जो सर्कमस्टेंसेस उस टाइम पे बने थे, बस वो बाद में ना बने, उतना हमें याद रखना चाहिए। और यही चीज़ें मैं बच्चों को भी समझाती हूँ, अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि ठीक है, जो हो गया ठीक है, माफ़ करो एक-दूसरे को, लेकिन ये चीज़ें याद रखो कि कॉन्सिक्वेंस क्या थे? आपने जो एक्शंस हुए उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? और वो कॉन्सिक्वेंसेस अगर अच्छे थे तो भी याद रखो कि हाँ, ऐसा करने से अच्छा हुआ, और अगर बुरे थे तो भी याद रखो कि बुरा था। तो बस वही लर्निंग है कि अगर जो भी रिलेशनशिप है उसमें हम सीखते ही हैं। हर कोई सीखता है और हर किसी को सीखना चाहिए, किसी एक के करने से भी नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ मैं ही करती रहूँ तो भी नहीं होगा, या बच्चे ही करते रहें तो भी नहीं होगा। तो वो एक सबको उस तरह का समझाना पड़ता है, मतलब बीच में आना पड़ता है कि आप समझ जाओ ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। और आज रियलाइज़ भी करते हैं, जैसे अभी मेरी पोस्टिंग अलग हो गई है तो बच्चे अलग हैं। 2 महीने से 2 या 3 महीने से मेरे को मतलब लगता है अब बच्चों को भी याद आती है, उधर हस्बैंड को भी याद आती है, उधर मुझे भी याद आती है, तो मतलब सब चारों तरफ हो गया। तो अब सबको उस रिलेशनशिप की अहमियत पता चल रही है कि वो क्या था। जब साथ में थे तब लगता नहीं है कि एक-दूसरे की क्या ज़रूरत है। सब कह देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? बट ठीक है, कभी-कभी मौका मिले ना किसी को दूर भेजने का 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो भेजो उसको। उस टाइम में उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, क्या इम्पोर्टेंस है। तो बस यही मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जिनसे मैं सीख भी रही हूँ। और अ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जितनी भी चाहे हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे हम ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जैसे आपने शेयर करा, तो ये सारा हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमें सिखाती है। अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे, तो हम सेम मिस्टेक्स को फिर से रिपीट करेंगे। बेटर है उसको याद रखो, आप एक्सपीरियंस को याद रखो और उसे एक लर्निंग की तरह लेके आगे अपनी लाइफ को बढ़ा के चलो। और जैसे आपने बोला कि जो फैमिली मेंबर्स की वैल्यू जो है वो अब समझ आनी शुरू हो गई है जब दूर होते हैं। तो कोविड में जब हम लोग थे और सब घर पे बैठे हुए थे, एंड हम 4 जने, मतलब मेरी फैमिली जो है, हम लोग घर में बैठे हुए थे बिल्कुल। तो I don't know, I should say it or not, but that was such a good period for me, because I was able to spend so much time with my parents that I felt so blessed कि ठीक है, सब कुछ ठीक है. It was very, very stressful, no doubt in that, because every day you had that stress of bringing things, sanitizing it, and then having that stress कि किसी को कुछ हो ना जाए, family members में बाहर हर जगह इतना bad news and everything. But then that made us realize how important relations are, how important your family is to you, whatever it is, but family is very, very, very important for us. So that was the realization that I got through COVID कि दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. Just value everybody that you have. So relationships, maybe it's very, very important for us to value everybody and have that gratitude. Yeah. So yeah, anybody wants to share anything else or has any doubt? मैम हाँ जी, मैम मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ. बिल्कुल.
कि हमारे जो अभी मैम जो बात कर रहे थे, सेम सिचुएशन बहुत बार हम लोगों के साथ भी होती है। जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है, स्पेशली इन लॉज के साथ में, और जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं बट वो नहीं होता, और ऐसा कंटिन्यू रहता है, मतलब 1 महीने 2 महीने, साल भर 2 साल, ये कंटिन्यू इतना ज्यादा कंटिन्यू हो रहा है कि ये हमें बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी देता जा रहा है। और इसका फिर फाइनली ऑल्टरनेटिव क्या समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा आइसोलेट हो जाना बेटर है। अदरवाइज मतलब हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, हम जो भी डे टू डे लाइफ में जो चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सारी एनर्जी वहां जा रही है। तो अगर हो नहीं सकता कि हम लोगों के साथ हैप्पी रहें, तो क्या ये जो ऑल्टरनेटिव चूज अगर करने का मौका मिले, तो क्या ये सही रास्ता है? और हमें लगे कि बस यही एक रास्ता बचा है कि रिजर्व रहें, आइसोलेट हो जाएं, लिमिटेड रिलेशनशिप रखें उन लोगों के साथ में जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में हैं, बट चीजें स्मूथली नहीं चल पा रही। देखिए, अब उसमें जो मुझे यहाँ पे समझ आया या जो मैं सोचती हूँ इस बारे में, वो यही होगा कि सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमें किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बैठे साथ में और ट्राई करें कि जितने भी हमारे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को हम सॉर्ट आउट कर लें। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि चीज बहुत बड़ी है लेकिन चीज उतनी बड़ी होती नहीं है, और हम उन डिफरेंसेस को ना विद टाइम बढ़ाते रहते हैं, या फिर हम बीच में किसी मीडिएटर को घुसा लेते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मैं बता रही हूँ, सेम वो भी उसको बता रहे होंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम डायरेक्टली ही बात नहीं कर रहे होंगे। सो अगर आपके केस में ये हो चुका है कि आपने डिफरेंसेस सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी है एंड यू जेन्युइनली फील कि आपने उतना एफर्ट डाला है और उन्होंने भी उतना एफर्ट डाला है, दोनों तरफ से ये एफर्ट रहा है ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंसेस, देन अगर फिर भी नहीं वर्कआउट हो पा रहा है और डिफरेंसेस फिर भी रह रहे हैं, देन आई फील देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि जब आप लोग एक साथ खुश नहीं हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग अपने आप को, जैसे आपने कहा, लिमिट कर दें। ये नहीं है कि बिल्कुल अलग ही हो जाए, आप लिमिट कर दें कि उस रिलेशनशिप को लिमिट कर दिया जाए, ताकि ना तो उनको वो नेगेटिव एनर्जी आए और कॉन्स्टेंटली उनको भी वो चीजें दिमाग में और रिलेशन और हैम्पर हो, और ना ही आपको वो नेगेटिव एनर्जी आए, क्योंकि उनकी हेल्थ भी खराब होएगी और आपकी हेल्थ भी खराब होएगी उन नेगेटिव एनर्जीज को रख के। इट्स बेटर कि फिर उसको लिमिट कर दिया जाए और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा तो दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। बट वही है कि आप डिफरेंसेस सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अगर वो हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो यू कैन जस्ट क्रिएट अ बिट ऑफ डिस्टेंस, जिससे कि थोड़ा चीजें ठीक हो और आप दोनों के लिए ही, दोनों फैमिलीज के लिए ही नेगेटिव एनर्जीज ना रहें। Yeah, you can just Concludingly, I would just say that it's very easy to start a relationship and it's even easier to end a relationship. But the struggle lies in how to maintain that relationship. very true. Thank you so much, ma'am, for giving us some light, some guidance on how we can maintain our relationship in a very happy and a positive, healthy manner. So we thank you so much, ma'am, for giving us all these words of wisdom. Thank you, Thank ma'am, you so and much, thank you, Priya ma'am, for thank you all the coordinating the participants. session. Yeah, for coordinating the session with me today. Thank you, everyone. Okay, so with these words, I'm ending the meeting for all. Thank you, everyone.